पहली बात तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, हमारे लिए वेट करने के लिए, स्पेशली आवर मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. This is very special. I have never gotten myself into such a big thing. Owning a team is not something मैंने कभी लाइफ में सोचा था मैं करूँगी. So this is something really big I've put myself into. I don't know how it's going to go. It's all in their hands, so I cannot do much. I could only choose such brilliant players in my team. I cannot ask for a better team, I think. And now it's all up to them and all up to you, how much you will cheer. I would love to have you all on 22nd of December at NSCI at 7 p.m. where our team is going to be playing the Hyderabad team to open the league. So that's going to be the first match. And Carolina is going to be playing Sindhu in the match. So I don't think you want to miss it. So guys, please be there and support us like you did today. And this is our jersey because this is our debut season in the league. This is the first time Pune has entered the league, and that's with all of us. So fingers crossed. Thank you for coming here, and please keep. Oh, we have a Carolina sketch there. Yeah, so pretty. How nice, yeah. Come up, come up. Let her come. यहाँ पर कहाँ चाहिए सर? मांगो सर, मांगो. Whoa!
PI 7 p.m. Thank you. Thank you. Big round of applause for Pune 7 Aces who are in it to win it. If all of you could just come closer and a step ahead guys, for the photo op. That's Pune 7 with the order, Tapsi Pandu. And these guys are in it to win it. Say it, come on! In it to win it! People पीछे guys right one step इधर दो का एक चिराग सही है तो 6.5 फीट के सामने सही लग रहा है परफेक्ट स्माइल्स गाइस स्माइल्स बिग स्माइल्स that's Pune 7 Aces for you guys win there you unveil jerseys thank you so much Thank you so much, guys. Thank you so much. Being here. अरुण क्या बोल रहे थे अरुण ऊपर गया Thank you guys for being here. Hello, Sundar ji is here. मैं boss हूँ. Yes, of course. We have lots of. You will take a lot of pictures together. इंटरेस्टिंग चीज ये जो मेरे को पता लगी जो इन्फॉर्मेशन मैं बांटे जा रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो नॉलेज तो ज्ञान है बांटने से बढ़ता है कि पहली बार इंडिया में जब बैडमिंटन खेला गया था तो पुणे से शुरू हुआ था एंड इट वाज कॉल्ड पूना व्हिच इज अ ब्यूटीफुल थिंग और 7 नंबर सबको पता है सर लकी 7 वाली 7 प्लस 7 ये 7 वो और 7 एसेस सो व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव फॉर द टीम फॉर Tapsi for yours I think you guys will go for individual questions. I'll just first say thank you so much for coming, everyone, all the entire media. Thank you so much. This is not a movie conference or जिसके अंदर usually I keep meeting a lot of media. That's why it's really special because it's not my regular job to be here in a sporting event. That's why I'm a little nervous as well. This is the first time I've taken such a big step with just a gut instinct that this is something that I'm connected to personally, so I wanted to take it a step ahead. Personally, being a big sports fan in general, it was obvious for me if I had to start something beyond cinema, it would have been sports, so here it is. And honestly, I couldn't have asked for a better debut. एक तो badminton, a team which I feel is the family sport. It's a sport that's called, I think, should be called the family sport of India because all of us have played it at least once in our lives. Then Pune, because as Abhilash just mentioned that this sport started in India in Pune. And then this team, I think I couldn't have asked for a better team to debut with. Everything is going perfectly fine so far, so good. We have a jersey that looks fantastic. It's the color of the Indian team. So I think we are all sorted. So see you on 22nd of December opposite a really tough team, Hyderabad. It's led by Sindhu, and Carolina and Sindhu are starting the league, which is going to be the biggest match, I believe, of the league. So we are all very excited and geared up. This time I feel honestly a lot of teams, we are the 9th team, and a lot of the teams have
really good talent. I think it's going to be very tough this year. Toughest so far compared to all the this is the 4th season, so compared to all the seasons. Yeah, rest, let's please support us. 22nd, 24th, 2 matches in Mumbai, then we move ahead to Pune, then Ahmedabad, and then inshallah if we qualify for semi-finals in Bangalore. So yeah, here's my team. It's open for questions. One-on-ones bhi karne hai, so you can go ahead later. Karina, first match against PV Sindhu. What are the feelings? What are the emotions right now? Well, thank you very much to everyone. You know, it's been really emotional for me, and I feel really exciting to be part of the Pune 7A16. I feel really happy that I am in the same team with Tapsi, our owner, and yeah, it's going to feel like a really exciting match on 22, and I just hope that everyone go to support our team, because we will need this support. And yeah, to play against Sindhu one more time in my career. I think they are best friends on court. They meet on court more than they probably meet off court. So I think that the record that Carolina has, the fact that she hasn't lost a single match in the last season of PBL, I think puts a lot of pressure on her, and I think makes it exciting for all of us. I'm sure she's going to give it her best, and yeah, she's the icon player for us. I think we were lucky. So yeah, thank you. Yeah. Alright guys. सुंदर जी, हाँ जी बैठिए। कि बैडमिंटन से आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ अस लव बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट, बिकॉज हमने खेला हुआ है, चाहे वो स्कूल पिकनिक्स पे हो, फैमिली पिकनिक्स पे हो, या स्ट्रीट पे अपने घर के बाहर बिना नेट के ही खेलना शुरू कर देते थे। तो आई डोंट थिंक ये ऐसा स्पोर्ट है जो किसी को नहीं पता होगा या जानते नहीं होंगे। तो मेरा प्यार भी बचपन का ही है, जो घर के सामने पटरी पे लगा के एक नेट खेलना शुरू कर देते थे हम सारे फ्रेंड्स। इतना प्रोफेशनल लेवल पे कभी नहीं खेला, बट हाँ इंटरेस्ट बचपन से था खेलने का। सो अब इतना हो सकता था, अभी इतनी इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि एक टीम खरीद सकती थी तो खरीद ली। अगर 2 साल 3 साल 4 साल पहले पूछते कि टीम खरीदोगे, तो मैं बोलती कि ऐसा सपना है जो पता नहीं कभी मैं पूरा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अब लग रहा है कि कर सकती हूँ, तो कर लिया ट्राई। Alright, so let's start the one-on-ones, yeah? Let's start the one-on-ones. ऑनर को ऑनर कर सकते हैं हम आपको। तो आप बताइए कि क्या कुछ फीलिंग हो रही है इस समय प्रेजेंट टाइम में, एंड आपके सिस्टर फैमिली वाले हर मेंबर का क्या कुछ रिएक्शन था? 2 सवाल पूछ लिया एक्चुअली मैंने। हाँ एक्चुअली बड़े सारे पूछ लिए। पहली बात तो कि इतना बड़ा कदम ना पर्सनली एक तरह के बिजनेस वेंचर में मैंने इससे पहले नहीं लिया था। इससे पहले मैंने एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी स्टार्ट की थी, जो कि तो एक स्टार्टअप की तरह थी। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लीग के अंदर एक नई टीम मैंने खरीदी है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है मेरे लिए। कभी सोचा नहीं था। कुछ साल पहले भी लोग मुझसे पूछते कि ऐसा कुछ करूँगी, तो स्पोर्ट्स से प्यार तो बहुत है, बट इस हद तक वो लेके जाएगा प्यार। मुझे कहते थे प्यार अंधा होता है, तो कुछ ज़्यादा ही अंधा हो गया कि मैंने अब टीम खरीद ली है। अब आई जस्ट होप कि मेरी जो गट फीलिंग इंस्टिंक्ट है वो मेरे को आगे तक लेके जाए इस वेंचर में भी। और मेरे घर वालों का आई थिंक मेरी बहन का अगर आप पूछ रहे हैं तो वो एक्सट्रीमली सपोर्टिव, शी ऑल्सो इज़ देयर। इस टीम में मेरे को मदद करेगी। यू विल सी हर ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो वेडिंग प्लानर है, उसको इवेंट संभालने का एक्सपीरियंस है। सो वो मेरी हेल्प करने वाली है ऑन ग्राउंड। IPL तो बहुत आगे की बात करो यार। अभी पहले ये वन एट अ टाइम करते हैं, एक कदम एट अ टाइम करेंगे। अब प्रे करो कि ये सक्सेसफुल हो, ताकि मैं कुछ और बड़ा कर सकूँ। ओके मैम, आपकी टीम में इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर भी है, सो कितना 5 इंडियन है, 5 इंटरनेशनल। डिफिकल्ट है इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाने के लिए आपकी टीम में? डिफ़िकल्ट तो खैर आई थिंक PBL का फॉर्मेट ही ऐसा है कि डिफ़िकल्ट तो नहीं होता इनको लाना, बिकॉज ये सारे प्लेयर्स साइंड अप होते हैं PBL वालों के साथ कि हमें चूज़ करना होता है ऑक्शन के अंदर, जिस तरह से बाकी लीग्स का ऑक्शन होता है, इसका भी ऑक्शन होता है। सो एक तरह से स्ट्रैटेजी ये थी कि मिक्स करना है प्लेयर, हर तरह के एक्सपीरियंस के, हर तरह के बैकग्राउंड्स के, क्योंकि ये ना लीग के अंदर आके ये बैडमिंटन जो है वो टीम स्पोर्ट बन जाता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं बनता। अगर कैरोलिना चाहे वो इतनी बड़ी प्लेयर है, वो मेरे को अगर अपना मैच जीत भी जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि मेरी टाई जो होगी उस दिन की जीत जाएगी, क्योंकि 5 मैच में से 3 मैच जीतना इंपॉर्टेंट है।
सो सिर्फ एक मैच के बलबूते पे मैं पूरा लीग नहीं जीत सकती। सो मेरे लिए एक एक जो प्लेयर है, हर एक प्लेयर मेरा स्टार है, क्योंकि वो सब जीतेंगे तो ही मैं जीतूंगी, एक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। सो इसका फॉर्मेट ऐसा है, इसलिए मैंने मिक्स करा एक्सपीरियंस प्लेयर, यंग टैलेंट जिन्होंने ऑफ लेट कुछ लास्ट महीनों के टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सो उनका रिकॉर्ड देख के लेटली कैसे परफॉर्मेंस है उनकी, उस समय ऑप्शन में हमने चूज़ किया। सो मिक्स एंड मैच है, 5 इंडियन है, 5 फॉरेन प्लेयर्स हैं, और एक्सपीरियंस कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मथायस 18 साल का एक्सपीरियंस है उसको, और अभी ये जो लक्ष्य है वो अभी अंडर 18 में ही खेल रहा है। सो इट्स लाइक अ ह्यूज मिक्स एंड मैच। आई थिंक मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट है। मैंने अपनी तरफ से जो स्ट्रैटेजी लगाई है अपने कोचेस के साथ मिलके, हमें तो लगता है कि काम करेगी। अब आगे देखते हैं, 22 को पता चल जाएगा। Okay, ma'am, being a co-owner, what will be your main purpose? So highlight the game, earn a money, और या बड़ा? सी अर्न अ मनी तो खैर बहुत दूर की बात होती है किसी भी लीग के अंदर। अर्न अ मनी तो बहुत सालों के बाद आता है। वो पास में तुम ये सोच के कि मैं अभी कभी पैसे मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होता लीग के अंदर। तो वो मेरा माइंडसेट ही नहीं है। एंड मोर सो बिजनेस साइड ऑफ एस्पेक्ट आई एम नॉट हैंडलिंग। माई को ओनर्स, द टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जो मेरी है वो बिजनेस साइड देखती है। मेरा काम इतना है, मुझे बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट, एज अ लीग, एज स्पेशली दिस लीग, ये जो डोमेस्टिक लीग है हमारी, उसको एक एक सिटी में, एक एक घर में पहुंचाना है। मेरा ये एम है, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के अंदर क्रिकेट के बाद इंटरनेशनली अगर कोई स्पोर्ट है जिसको रिकग्निशन मिलता है एट इंटरनेशनल लेवल, और जिसके प्लेयर्स परफॉर्म करके डिलीवर करते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, दैट इज बैडमिंटन। बट देयर इज अ ह्यूज गैप आई फील बिटवीन द लीग, IPL लीग एंड बैडमिंटन लीग। मुझे वो गैप कम करना है, क्योंकि मैं पहली एक्टर हूँ जिसने बैडमिंटन लीग में एक टीम ओन करी है। सो आई होप और ओन करें लोग इसके बाद, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं, जितना रिजल्ट रहा है बैडमिंटन का हमारी कंट्री से लास्ट कुछ सालों में, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है रिजल्ट। मतलब ये 2020 के अंदर जब ओलंपिक होगा तो 1-2 नहीं, काफ़ी मेडल कंटेंडर्स होने वाले हैं इंडिया से। तो आई थिंक इट्स ओनली गोइंग टू बिकम बेटर एंड बेटर। सो मेरा काम है कि मेरे को हर एक सिटी के एक एक घर के अंदर बैडमिंटन ऐसा वो स्पोर्ट ऐसे पहुंचाना है कि वो ओन करें कि ये हमारा स्पोर्ट है। ओके, तब से मैं आपकी ले जा रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ कि नहीं वो तो, हाँ, वो बात ये कि एक ना मेरे लिए एक्टिंग एक जॉब है। मैं काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ, जैसे सबका होता है। और ये जो चीज़ें हैं, वह चाहे वेडिंग प्लानिंग हो, चाहे ये बैडमिंटन टीम हो, ये मेरा पर्सनल पैशन इंटरेस्ट मान लीजिए जो है, जो कि एक बिजनेस में मैंने कन्वर्ट कर दिया। मेरा फर्स्ट एंड मेन प्रोफेशन एक्टिंग ही रहेगा। बट ये जो प्रोफेशन है मुझे हेल्प करते हैं, कहते हैं ना, रीबूट होने के लिए, ताकि मैं दोबारा से फ्रेश एनर्जी से आ पाऊँ। तो मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते हैं, ताकि मैं इन फील्ड के अंदर थोड़ा दिमाग लगाऊंगी तो रिफ्रेश हो जाऊँ, और फिर जब एक्टिंग में वापस आती हूँ तो एक डिफरेंट एनर्जी से वापस आती हूँ, इसलिए। ओके मैम, आप मल्टी टैलेंटेड भी है, एक्टिंग भी, कराटे भी, अब बैडमिंटन में भी, तो कैसे मैनेज करते हो? विच इज़ योर फेवरेट? आई थिंक कराटे मार्शल आर्ट्स तो मैंने फिल्म्स की वजह से सीखी थी, उसके बाद शौक पड़ गया तो कैरी ऑन किया था। बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से मैं इंक्लाइंड रही हूँ। मैं एक वो लड़की थी शायद घर के अंदर सिर्फ लंच और डिनर करने के लिए या सोने के लिए बैठती थी, और उसके बावजूद मतलब मैं सब बाहर ही रहती थी घर से। चाहे वो एक बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट हो, चाहे वो एकदम स्ट्रीट वाले स्पोर्ट नहीं होते, पिट्ठू से लेके ऐसे जो छोटे मोटे बच्चे टाइम पे खेलते हैं, ऐसे लूडो, तो वही, ऐसा मत बोलो यार, अभी भी तुम बेइज्जती मत करो यार मेरे आउटडोर स्पोर्ट्स की। सो मैं हर तरह के एक्टिव स्पोर्ट्स में बाहर रही हूँ। मैंने वॉलीबॉल ट्राई किया है, मैंने बास्केटबॉल भी ट्राई किया स्कूल टाइम पे। तो मैं अभी इनफैक्ट स्क्वॉश खेलती हूँ मैं अपने फिटनेस के लिए। तो मेरे को स्पोर्ट्स का बेंट ऑफ माइंड रहा है। मल्टी टैलेंटेड कह लो या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन कह लो, बट मुझे ना हर जगह हाथ पैर पिसाना हर चीज़ों में पसंद है। ओके, इसके अलावा बदलाव को लेके इसे एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो मेरी बोनी करेगा 2019 की, क्योंकि 18 इतना अच्छा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि 2019 भी अच्छा खुलेगा 8 मार्च को। ओके मैम, इसके अलावा मिशन मंगल के बारे में अगर बता दें। 15 अगस्त, क्योंकि उसके साथ ही और एक वेब सीरीज भी क्लैश कर रही है सेम सब्जेक्ट। बहुत कुछ क्लैश कर रहा होगा। ओके, लास्टली वन न्यू ईयर विश। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर तो सेलिब्रेट करो एंड गेट एंटरटेन्ड इन अ डिफरेंट वे दिस न्यू ईयर। कम वॉच आवर मैच, विल बी प्लेइंग इन पुणे अराउंड न्यू ईयर्स, एंड वॉच PBL. I think badminton deserves your love and support. थैंक यू।